हेलो स्टूडेंट्स समस्त प्लस टू फर्स्ट ईयर आर्ट्स साइंस एवं कॉमर्स छात्र छात्री को आज वीडियो को स्वागत। आज वीडियो आम प्लस टू फर्स्ट ईयर इंग्लिश रो एक पोएम पढ़िबा। पोएमटर ना है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। स्टॉपिंग बाय वुड्स माने एटी वुड्स माने जंगल। वुड्स माने जंगल, स्टॉपिंग माने अटकी जीवा। स्टॉपिंग बाय वुड्स जंगल निकट अटकी जीवा ऑन ए स्नोई इवनिंग। स्नोई इवनिंग माने एक बरफावृत संध्यारे, बरफावृत संध्यारे। The poet is Robert Frost, an American poet. अमेरिकार कवि जने रॉबर्ट फ्रॉस्ट। से इति लिखिछन्ती स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग। You know, the European countries and the America, these are the cold countries. सेगुड़िक ठंडा देश। In winter there was maximum time snowing, सब बड़े बरफ पड़ुला। एबे मध्य ग्लोबल वार्मिंग पर टी कमी जाइछि, किंतु एबे मध्य शीत दिने यूरोपियन कंट्री एवं अमेरिकन देश गुड़िकर अधिकांश देश रे बरफपात होइताय एवं एटा संध्या समय बरफपात होइछि। कविंकर ए जो लेखा एटी अनेक वर्ष पूर्वर संध्या समय कवि जेतले जाउतिले बरफपात होइछि एवं ता विषय कवि लिखिछन्ती। कवि विषय देखिबा The poet Robert Lee Frost 1875 to 1963 1875 से जन्म होइतिले, मृत्युवरण करथिले 1963 रे। ताको पूरा नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट was an eminent American poet, जने खूब विज्ञ विद्वान अमेरिकन पोएट। For him a poem begins in delight and ends in wisdom. ताको अनुसार गोटे कविता डिलाइट रे आरंभ होए, आनंद रे आरंभ होए एवं गोटे विजडम रे शेष होए। विजडम माने कोन? स्वतंत्रता, स्वतंत्र मन, स्वाधीन मन एथिरे शेष होए। ताले एई जो हेछि फ्रॉस्ट वाज रोमांटिक पोएट, ऑल लवली थिंग्स ऑफ नेचर आर डियर टू हिम। से जन रोमांटिक पोएट थिले, प्रकृतिर समस्त जिनिस तांको बहुत प्रिय थिला। His keen perception made him see things which escaped the notice of others. तांकर keen perception खूब जत्न भावरे तीक्ष्ण अनुभव जोटा अन्य मान को एवॉइड कर जाइता, अन्य माने जोटा देखि पार नथि सेटा से देखि पार। ओके, एइटी जो पोएम अछि आमे स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग रे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट्स पोएम्स begins in delight and ends in wisdom. The present poem Stopping by Woods on a Snowy Evening has an ordinary beginning. But ordinary beginning रे आरंभ होइछि poem टी, but soon the poem develops to present a philosophic speculation. एवं धीरे धीरे गोटे फिलोसफिकल थॉट ताकर से भीतर पसिछि, दार्शनिक चिंताधारा आसीछि। अबाउट द रिलेशन बिटवीन मैन एंड नेचर, मनीष एवं प्रकृति विषय संपर्क विषय गोटे संपर्क विषय आसी। लेडी बिगिनिंग केमती वंस द पोएट रोड टू वुड्स, जंगल दे से जाउतिले घोड़ार चढ़ी की, रोड राइडर पासनेस रोड। वंस द पोएट रोड टू वुड्स he guessed that he knew whose woods it was. He guessed, से अनुमान कले एटा कहार जंगल से जानी थिले। It was the owner was living in a village far away. इतकी दूर रे बेटा जंगल पाख किसी दूर रे ए जंगल रो मालिक वास करथिले। He was known to the poet
Playfully, he thought that he could enjoy the beauty of the woods. ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ବ୍ୟୁଟିକୁ ସେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। was covered with snow, ଯୋଉଟା କି ବରଫରେ ଢାଙ୍କି ରହିଥିଲା, without interference of its owner. ଅନରଙ୍କର ବା ଜଙ୍ଗଲର ମାଲିକଙ୍କର କୌଣସି ବିନା ବାଧାରେ, କୌଣସି ବାଧାରେ, କାହିଁକି ମାଲିକ ତ ସେଟା ନାହାନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ମାଲିକଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ମାଲିକ ଜଙ୍ଗଲର ମାଲିକ ଚିହ୍ନା ଥିଲେ ପଏଟଙ୍କର, ସେ ଜଙ୍ଗଲର ବ୍ୟୁଟିକୁ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। Let's start the first stanza. I read out the first line. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. There is no difficult word. Woods means jungle, forest. Whose woods these are? କାହାର ଜଙ୍ଗଲ ଏଇଗୁଡ଼ିକ, କାହାର ଜଙ୍ଗଲ? I think I know. The poet guesses that he knew, he has known the owner of the woods, the owner of the jungle. The owner of the woods is known to the poet. His house is in the village, though his house is. କବି ଜଙ୍ଗଲର ମାଲିକକୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ମାଲିକ ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ଗାଁରେ ବାସ କରନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି। The woods are outside the village. The poet guessed that he knew the owner of the woods. The owner was living in a far off village. Far off village, ଗାଁର କିଛି ଦୂରରେ ମାଲିକ ବାସ କରନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। He will not see me stopping here. The poet thinks that the owner will not see him watching his woods, to watch his woods fill up with snow. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. The poet thinks that the owner will not see him watching his woods which is filled with snow. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. This is the first stanza. Then I read out the second stanza. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. In this second stanza, no difficult word. My little horse. My little horse means not small horse. My little horse means the poet like his horse very much. The horse was poet's very favorite, so he called it my little horse. Okay, my little horse କାହିଁ ସେ କହିଛନ୍ତି? ଏଠି ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲରେ କହିଛନ୍ତି। The horse is a symbol of utilization aspect of life. It finds no meaning in stopping by woods at evening. It is a cold evening. Night is approaching. Snow is falling. There is no farmhouse near. There is no possibility of getting a rest place, so it is strange to stop there. My little horse must think it to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. My little horse means କବିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଘୋଡ଼ା, ତେଣୁ ସେ my little horse କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଘୋଡ଼ା। ଏଠି ଲିଟିଲ ମାନେ ଛୋଟ ନୁହେଁ, ଛୋଟ ଘୋଡ଼ା ନୁହେଁ,
सी भावुचंती माय लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर सी भावुतबो क्वीर माने कोन अद्भुत ऑड स्ट्रेंज क्वीर माने कोन ऑड बा स्ट्रेंज ऑड स्ट्रेंज बा अद्भुत जोटा कहे कोन अद्भुत अद्भुत माय लिटिल हॉर्स थिंक इट क्वीर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर मालिक सब बेले फार्म हाउस पाखरे फार्म हाउस कहले कोन जोटी रेस्ट पई आगे पूर्व काल रेस्ट पई सब बिनो घर थिला तो फार्म चाष फास होए से पाखा पाखी चाष बास सब संग्रह हुए किछि दूर गोटे लेखा फार्म हाउस थाए घोड़ा मनीष समस्त पई सेठी रहिबार व्यवस्था थाए होटल टाइप रो तेणु टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर पाखरे कोन फार्म हाउस नथिला हठात the poet stopped on the way at the forest so the horse must think it a strange thing घोड़ा पई बहुत एटा अद्भुत लागुतो बोली कोई भाउचंती जे से तो फार्म हाउस नुहे एटा जंगल मझिरे हठात काहे की कवि ठिया ही गले एटा जानिया पे ताकू स्ट्रेंज लागुतो अद्भुत लागुतो बोली कवि भाउचंती between the woods and frozen lake woods माने कोन जंगल फ्रोजेन माने कोन बरफ अलटी जाइथिबा बरफ टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस माने कोन खमार घर नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजेन लेक वुड्स माने जंगल एंड फ्रोजेन लेक माने बरफ पलटी जाइथिबा ह्रद the darkest evening of the year माने generally the evening in winter is long and dark due to frost शीतकालीन संध्याटी टिके लंबा हुए काहे शीघ्र संध्या हो जाए आउ ड्यू टू फ्रॉस्ट फ्रॉस्ट माने कोन झड़ बरफ झड़ जगु शीघ्र अंधार देखा जाए तेणु दी डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर को शीत दिन ठंडा शीत दिनिया समयटा शीघ्र संध्या हो जाए बरफपात होता है तुषारपात जगु फ्रॉस्ट ठंडा एवं तुषारपात जगु शीघ्र संध्या हो गला पर लागे तेणु इट वाज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर बोली कवि कहउछंती द पोएट एटा माने टिके देखिबा कोन केमती अछि द पोएट वाज राइडिंग होम ऑन हिज हॉर्स वन इवनिंग he came across a village woods the poet was riding home on his horse one evening संध्या बेले घर को फेरुतिले कवि ताको घोड़ा रे चढ़ी he came across a villager's woods ग्राम पाखरे थिबा गोटे लोकर ता जंगल देखि आसुथिले the beauty of the woods attracted him and he stopped there এই যে জঙ্গলে ଥିଲା তার বিউটি বা সৌন্দর্য কবিଙ୍କୁ আট্রাক্ট କରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ସେଇଠି ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା ଜଙ୍ଗଲର ବିଉଟି he stopped there the entire woods was filled with snow संपूर्ण कोन जंगलटी बरफरे भरि ଯାଇଥିଲା the poet felt that his horse was wandering कवि भाबुतिले his horse was wandering as to why they should stop there से काहे कि जेटी अटकी गले ता घोड़ा नियति भाबुतबो there is no farm house nearby पाखरे कोन सी फार्म हाउस नथिला खमार घर नथिला अटकिया पई कवि काहे कि अटकी गले जंगल मध्ये से भाबुतबो एटा गोटे अद्भुत बोली से भाबुतबो the lake water was frozen ह्रदर पानी बरफ पलटितला नाइट इज एप्रोचिंग संध्या हे आसला राती संध्या की राती बढ़िबार लागितला एप्रोचिंग इट इज ऑलरेडी डार्क देयर एवं सेटे अंधार मध्ये हेतिला ओके ओके ताले हमें कोन जानिले आजिरो ए पोएम रो कोन जानिले फास्ट जानिले दी पोएट वाज रिटर्निंग होम कोन जानिले दी स्टांजा 1 to 2 रे कोन जानिले दी पोएट वाज रिटर्निंग होम 1 रे दी पोएट वाज रिटर्निंग होम
2 रे he stopped by a wood 2 रे मन रखंतु he stopped by a wood 3 रे he guessed he knew the owner of the woods अनुमान करथिले से ओनर को जानिथिले 4 नंबर लाइन रे the owner was living in a village far away from there ओनर जंगल पाखरु किछि दूर रे गां रे रहुथिले he could not interfere with his enjoying the snow covered woods to his heart's content एवं से जंगल रो मालिक बा बन रो मालिक कवि को किछि बाधा दे पार नथिले काहे से दूर रहिथिले आ ए तांकर जंगल रो सौंदर्य को उपभोग करिया पई के बाधा को नथिले तापरे 6 रे his horse took his stopping there was a strange incident गोटे स्ट्रेंज इनसिडेंट बा गोटे कोन अति अद्भुत जिनिस बोली घोड़ाटी भाबुतला सेटे अटकी जिबारु he saw no farm house near the woods जंगल पाखरे कोनसी फार्म हाउस नथिला कोनसी फार्म हाउस देखिया में पाइला ने तेनु सेटे अटकी जिबाटा को से अद्भुत बोली भाबुतला इट वाज द विंटर इवनिंग एटा को संध्या समय संध्या कोन शीत संध्या थिला the water of the lake was frozen हृदर पानी बरफ पलटि जाइतला नाइट वाज डिसेंडिंग रैपिडली रात्रि खूब शीघ्र हेई आस्तला तळको तळ खसी आस्तला डिसेंडिंग तळ खसबा रात्रि हेई आस्तला खूब शीघ्र धीरे धीरे बढ़ी चलतिला एई हला आजिरो दुईटी स्टांजा नेक्स्ट दुईटी स्टांजा परे पढिबा ओके आ वीडियो टी केमति लागला कमेंट्स माध्यम जणाइबे जदि भलो लागले लाइक करिवे आउ सांग साथी सहित शेयर करिवे आ जो माने प्रथम थर पय आज ए वीडियो देखछन से माने को जदि वीडियो भलो लागला से माने वीडियो को लाइक करे से चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं बेल आइकन क्लिक करिवे ताले परवर्ती वीडियो नोटिफिकेशन तांग पाक सब टाइप धन्यवाद जो भी थांतु भलो थांतु सुख थांतु थैंक्स फॉर वाचिंग।